خدا یسوع کے بابرکت اور مقدس میں آپ سب کو سلام. آپ سب کو سلام. خدا آپ کو بڑی برکت دے. تشریف رکھیں. خدا کا شکر کرتے ہیں, خدا کی تعریف, خدا کی تمجید کرتے ہیں. وہ بڑا ہے, اس کی شفقت کرتی ہے. جب تک خدا کا پاک کو ہماری حفاظت نہ کرے, ہماری رہبری نہ کرے, ہماری رہنمائی نہ کرے, ہم اس کے حضور میں نہیں آ سکتے. جب تک خدا اپنا فضل نازل نہ کرے, ابلیس ہمارے سامنے بہت ساری رکاوٹیں ڈال دیتا ہے, بہت ساری دیواریں کھڑی کر دیتا ہے کہ یہ خدا کے حضور میں نہ جا سکتے, یہ خدا کے حضور میں نہ جائے. لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں, خدا کی تعریف, خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ خدا ہماری مدد کرتا ہے, خدا ہمیں برکت دیتا ہے. خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سب زور سے بولیں گے ہاللیلویا, ہاللیلویا. کیونکہ وہ شخص مبارک ہے جو خدا کی بارگاہوں میں آتا ہے, جو خدا کے حضور میں آتا ہے, وہ مبارک ہوتا ہے. آپ مبارک ہیں. سب زور سے کہیں آمین. آپ مبارک ہیں. پھر بولیں آمین. جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے, جب آمین کہتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں مبارک ہوں. اور جو مبارک لوگ ہیں وہ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں. اسی لیے یسوع مسیح نے بہت ساری مبارک باتیوں کا ذکر کیا کہ مبارک ہے آپ, مبارک ہے وہ, مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے, مبارک ہے وہ جو دل کے پاک ہیں. اس لیے ہم نے پاک بننا ہے, ہم نے مبارک بننا ہے. خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں, خدا کی تعریف کرتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے بھائی؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب اس کے کلام میں سے سنیں گے تو ہمارے بدنوں کے اندر, دلوں کے اندر ایمان پیدا ہونا شروع ہوگا, اور پھر وہ ایمان بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ پہاڑوں کو ہٹانے کے قابل بنے گا. اس لیے ہم نے خدا کے حضور میں آنا ہے, دعا کرنا ہے, اپنی مشکلوں کو, پریشانیوں کو خدا کے حضور میں پیش کرنا ہے. اس لیے کلام مقدس کا حصہ پڑھتے ہیں. صاحب میرے ساتھ نکالیں گے مثال 28واں باب, اس کی نامی ایسے پڑھنا شروع کریں گے. مثال 28واں باب, اس کی نامی ایسے, جس کے پاس مائک ہے وہ پڑھنا شروع کریں. شاباش. جی بیٹا. خدا کی زندہ کلام میں لکھا ہے, جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے, اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. جو کوئی ساتھ کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے, وہ اپنے گڑھے میں آپ ہی گرے گا. لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے. مالدار اپنی نظر میں دانا ہے, لیکن عقل مند مسکین اسے پرکھ لیتا ہے. جب صادق فتیاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے, لیکن جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈتے نہیں ملتے. جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے, لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا. مسلموں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے تعلق بیچ کی مانگی ہے. بے قدر حاکم بھی بڑا ظالم ہے, لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی. جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گڑھے کی طرف بھاگے گا, اسے کوئی نہ روکے. جو راستوں میں رہائی پائے گا, لیکن کجرو ناگہان گر پڑے گا. جو اپنی زمین پر اپنی کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا, لیکن بطالت کا پیرو بہت غال ہو جائے گا. خیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا, لیکن جو دولت مند ہونے کی جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چکے گا.
आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सब अपने आप को बंद करेंगे चंद लोगों के लिए। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। ये कलाम मुकद्दस का हिस्सा जो पढ़ा गया है इसकी तशरीह और तफसीर अता कर। हम तेरे नाम से एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, तेरा सुना हुआ कलाम 100 गुना फल लाए। हम तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने, अपने गुनाहों को छुपाने वाले ना बने, बल्कि उनका इकरार करने वाले बने। खुदावंद इस जमात पर तेरी बरकत वाले हाथ को चाह रहा हूँ, तेरी हिकमत को मांगता हूँ, एक एक रूह पर एक एक जान पर तेरी हिकमत मांगता हूँ। खुदावंद हम सब तेरे कलाम के वसीला से मदद पाएं। तेरा कलाम हमारे लिए बरकत का बायस हो और हमारे ईमान को बढ़ाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। सब जोर से कहेंगे आमीन आमीन आमीन। ये सुलेमान की मिसाल जो आप सबके सामने आज पढ़ी गई, यहाँ पर पहली आयत जो पढ़ी गई क्या है कि जो काम फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस बात पर गौर करें, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। आप 2 घंटे दुआ करते हैं, 3 घंटे करते हैं, कलाम भी आपके अंदर है, लेकिन आप कलाम को सुनते नहीं हैं। ईमान कैसे पैदा होता है? वही मैंने पहले भी बताया है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और यहाँ पर लिखा है कि जो काम फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, यानी लफ्ज़ी मतलब है जो खुदा के कलाम को ना सुने। जो खुदा के कलाम को नहीं सुनता उसकी दुआ जो है वो भी नफरत अंगेज है, नफरत अंगेज। आप तो एक नफरत करते हैं, लेकिन इससे 2 दर्जे आगे चले जाएं, नफरत को 3 दर्जे कर दें, तो ऐसी हालत उस शख्स की है, उस लेडीज की है, उस जेंट्स की है जो कलाम को नहीं सुनता। कि जो काम फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। आपको किसी चीज से नफरत हो तो आप उसको पसंद करते हैं? हाँ भाई, नहीं। जिस चीज से आपको नफरत है आप उसको पसंद नहीं करते, उसको देखना भी पसंद नहीं करते। बेशक कोई नुकसान हो, बेशक कोई और चीज हो। मिसाल के तौर पर सुबह मेरे बेटे मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे जी फलां कहता है ये चीज खाना जायज है, हम नहीं लूंगा, समझ गए कि फलां चीज खाना जायज है या फलां चीज खाना जायज नहीं है। मैंने कलाम मुकद्दस से एक बात उनको बता दी, क्या है कलाम मुकद्दस में, जो कोई उस चीज को हराम समझता है उसके लिए वो हराम है, और जो उसको हराम नहीं समझता वो उसको इस्तेमाल करता है। हाँ भाई, ऐसा है। जो जिस चीज को हराम समझता है, मैं शराब को हराम समझता हूँ, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता, मुझे नफरत है उससे। आप में से भी सबको नफरत है, लेकिन जो उसको इस्तेमाल करते हैं उनको नफरत नहीं है, वो उसको अच्छा समझते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि जो कान फेर लेता है शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है, उसकी दुआ से भी खुदा को नफरत है। सुनो, इसलिए हमने कलाम को सुनना है। सब जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। हमने कलाम को सुनना है ताकि हमारी दुआ जो है वो खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरे, हमारी दुआ को खुदा सुने, हमारी दुआ को खुदा कबूल करे। इसलिए खुदा आपको बड़ी बरकत दे जो आप आज के दिन खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं। खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, जब सुनेंगे तो अमल करेंगे, जब सुनेंगे तो ईमान पैदा होगा, जब सुनेंगे नहीं। इसलिए इब्लीस की ये ख्वाहिश होती है, आपके बहुत सारे बच्चे जहाँ वो ताश खेल रहे होंगे कि वहां नहीं जाना। इब्लीस ने ऐसे उनके मुंह में उनके बंदर बांधे हुए हैं, वो उनको खुदा के हुजूर में नहीं आने देता। आप खुदा के हुजूर में आए हैं,
अबलीस के बंधनों को तोड़ कर आए हैं, चुनों को तोड़ कर आए हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, इसलिए कि आप खुदा के कलाम को सुनने आए हैं, शरीयत को सुनने के लिए आए हैं और खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लिखा है जो कोई साधों को गुमराह करता है ताकि वो बुरी राह पर चले, वो अपने घड़े में आप ही गिरेगा। जो कोई साधक को गुमराह करता है, एक शख्स, हाँ कोई बात नहीं, ऊपर भेज देंगे, जो आते हैं लोग ऊपर भेज देंगे। हाँ लिखा है जो साधक को गुमराह करता है, एक शख्स कोई काम नहीं पूरा करता लेकिन दोस्त उसको मजबूर करके वो काम करवा लेते हैं। और कलाम में उसमें लिखा है कि बुरी सोचतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, बुरी सोचतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। इसलिए हमने अपनी हिफाजत करनी है, हमने खुदा के कलाम पर अमल करना है, गुमराह नहीं होना। जो कोई साधक को गुमराह करता है ताकि वो बुरी राह पर चले, वो अपने घड़े में आप ही गिरेगा। लेकिन कामल लोग अच्छी चीजों के वारिस होंगे, कामल लोग अच्छी चीजों के वारिस होंगे। यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया है, पाक बनो, पाक बनो, जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप कामल है, पाक है तुम भी पाक। यहाँ पाक का भी मतलब है कामल। और लिखा है कामल लोग जो है वो अच्छी चीजों के वारिस होंगे। और आगे क्या, मालदार अपनी नजर में तना है लेकिन अक्लमंद मस्कीन उसे परख लेता है। मालदार जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत है वो अपनी नजर में दाना है, लेकिन आगे लिखा है अक्लमंद मस्कीन उसे परख लेता है कि ये दौलत इसके लिए क्या बनेगी, ये दौलत इसके लिए रियात का बायस नहीं बनेगी, ये दौलत को उन रास्तों पर खर्च कर रहा है। यहाँ पर एक बात कहता जरूर, दौलत बुरी चीज बात नहीं है, दौलत बुरी चीज नहीं है, क्योंकि सुलेमान को खुदा ने इतनी ज्यादा दौलत दी और खुदा ने उसके साथ ये वादा किया कि जितने बादशाह तुझसे पहले हुए हैं और तेरे बाद भी जितने होंगे, मैं तुझे हिकमत दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तुझे दौलत दूंगा, हशमत दूंगा। तो यहाँ पर लिखा है मालदार अपनी नजर में धना है, क्या समझता अपने आप को, धना समझता है, लेकिन मस्कीन अक्लमंद जो है, गरीब अक्लमंद जो है, उसे परख लेता है कि इसकी जगह कहाँ है। हम कलाम मुक़द्दस में एक हवाला पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की, अमीर आदमी की और एक गरीब मस्कीन लाजर की, कि दोनों, जो अमीर था, दौलतमंद था, वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता है, लेकिन जब आखिरत होती है दोनों की तो उसको फिर पता चलता है कि मेरा ठिकाना कहाँ है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो मालदार है वो अपनी नजर में बड़ा धना है, लेकिन अक्लमंद मुश्किल से पढ़ लेता है। इसलिए हमने अक्लमंद बनना है, हमने बेवकूफ नहीं बनना। सब लोग से कहें हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने बेवकूफों को चुना तो है, लेकिन उनको बेवकूफ रहने नहीं दिया। खुदा ने बेवकूफों को चुना, बेवजूदों को चुना, लेकिन उनको उसने बेवजूद नहीं रहने दिया, बेवकूफ नहीं रहने दिया, बल्कि उनको अक्लमंद बना दिया। मैं अपनी बात करता हूँ, आज से 25 साल पहले मैं शराब भी पीता, ताश भी खेलता था, और भी जो भी अबलीस चाहता था मैं सारे काम करता था। लेकिन जब मैं खुदा के ताबे हो गया तो फिर ये चीजें मेरे अंदर से निकलना शुरू हुई। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। हम सब कामयाब होना चाहते हैं, सब लोग से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम जिस काम में भी हैं हम कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम एक राज बताता है। खुदा के कलाम में उसमें जी बेटा 3 आयत जरा जोर से पढ़ लीजिए, लिहाजा के अलावा और बेटा पढ़े। हाँ शाबाश, 13 आयत को, हाँ 28वें बाब की 13 आयत को पढ़ेंगे। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा,
लेकिन जो उसका इकरार करके उसको दर्द करता है उसको रहने दो। हालेलुया। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। बात ऐसा होता है कि खादम हजरात, मुबश्शिर हजरात, दीकर हजरात, सब जितने भी हैं वो चाहते हैं कि हमारे अंदर का जो गुनाह है वो लोगों को नजर ना आए, मैं लोगों को बहुत अच्छा महसूस हूँ। मैं ये हकीकत कह रहा हूँ। हकीकत में ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें, लोगों को हम अच्छे नजर आए, लेकिन जहाँ पर हमारी सुई अटकी है वहां पर अटकी रहे। लेकिन नहीं, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। अगर मेरे अंदर कोई गुनाह है, मैं यहाँ पर घुटनों पे खड़ा हूँ, तो मेरा काम है कि मैं उसका इकरार करूँ, मैं उसका इकरार कर उसको तर्क करूँ। सब जोर से कहें हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे अंदर कोई गुनाह है तो मैं उनका इकरार करूँगा, खुदा के हुजूर में इकरार करूँगा, माफी मांगूंगा और ये वादा करूँगा खुदा मैं ये गुनाह फिर नहीं करूँगा। आप में से भी सबके लिए यही हुक्म है, इकरार करेंगे ऐ खुदा मैं अगर नाफरमानी करता हूँ, ये नाफरमानी का गुनाह मेरी जिंदगी से जाता रहे, मैं करता था अब मैं नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। और अगर इसी तरह और भी बहुत सारी बातें हैं, ऐ खुदा अगर मैं किसी की इज्जत नहीं करता तो मैं खुदा के हुजूर में ये इकरार करता हूँ मैं इज्जत करूँगा, मैं खुदा के खादमों की इज्जत करूँगा, अपने माँ बाप की इज्जत करूँगा, अपने बहन भाइयों के साथ मोहब्बत के साथ रहूँगा, मोहब्बत से पेश आऊँगा। ये वादा करेंगे। जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा। अगर मैं यहाँ पर पैंट शर्ट पहनूं, ऊपर सफेद लिबास पहनूं और बहुत सारे गुनाह मेरे अंदर हो, बुनियाद के अंदर गुनाह हो, ऊपर बड़ी राष्ट्रवादी की मार्ग हो, लेकिन बुनियाद में गुनाह है, हम मैंने उस गुनाह को दूर करना है। और खुदा के कानून में उसमें जैसे लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। सब दोस्त कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। उस पर खुदा की रहमत होगी। इस पर जो गुनाहों को तर्क करता है, उनका इकरार करता है, खुदा के हुजूर में वो अहद करता है, वो मुबारक है। अगर क्या है, मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है वो मुसीबत में पड़ेगा। मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है, जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा। मेरे दिलों की इस बात को देख लो, मुसीबत में पड़ेगा। कौन? जो अपने दिल को सख्त करता है। इसीलिए कलाम में कुछ लिखा है आज तो उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, अपने दिलों को सख्त ना करो। और कलाम में बयान करता है मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है, खुदा से डरता है, खुदा के डर के खौफ से अपने बच्चों पर भी रहम करता है, खुदा के खौफ के खौफ से अपने माँ बाप पर भी रहम करता है, खुदा के खौफ की वजह से, खुदा के डर की वजह से वो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, भाइयों के साथ अच्छा सलूक करता है, वो किसी को धोखा नहीं देता खुदा के खौफ के खौफ से। इसलिए मेरे बीजों हमने खुदा के खौफ को मानना है। सब लोग फिक्र हालेलुया, हालेलुया। हमने खुदा के खौफ को अपने दिलों के अंदर रखना है, क्योंकि कलाम में ये भी लिखा है कि खुदा का खौफ इल्म का शुरू है, खुदा का खौफ दनाई का शुरू है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, खुदा के खौफ में उम्र की दराजी है। जब हम खुदा के खौफ को मानेंगे, लेकिन मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है वो मुसीबत में पड़ेगा। हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि मुसीबत एक ऐसी आजमाइश होती है, एक ऐसी आजमाइश होती है कि हम उसमें गिर जाते हैं तो फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने खुदा के हुजूर में अपने गुनाहों का इकरार करना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, दूसरे के गुनाहों का नहीं, अपने गुनाहों का। बात बात हम दूसरों के गुनाहों का इकरार करते रहते हैं कि खुदा के अंदर ये है, खुदा के अंदर ये है, खुदा के अंदर ये है। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने आप को साफ करना है,
आपने अपने आप को पार करना है। हमने किसी दूसरे पर नहीं, जो निगाह हम दूसरों पर रखते हैं अपनी नजर में हम क्या है। इसलिए मेरे बेटो हमने इकरार करना है। क्या करना है भाई? क्या करना है? सब जोर से कहें, क्या करना है? इकरार करेंगे तो खुदा खुश होगा। इकरार करेंगे तो हमारा खुदा अपने आसमान को हमारे लिए खोलेगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये ऐप लिखी है, ईमान लाना दिल से होता है और इकरार मुंह से किया जाता है। जब हम मुंह से इकरार करते हैं तो फिर हमारा खुदा हमें कबूल करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। और मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा, मुसीबत में पड़ेगा। इसलिए हमने तरस खाना है, हमने रहम करना है। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा भी रहीम है, वो भी रहम खाता है, वो भी तरस खाता है। इसलिए खुदा ने अपनी खूबियां हमारे अंदर रखी है। हमने खुदा के कलाम पर अमल करना है, खुदा के कलाम को हमने अव्वल दर्जा देना है। और घर में लिखा है कि जो रास्त रो है रहाई पाएगा, लेकिन कजरो नागहान गिर पड़ेगा। जो रास्त रो है, जो रास्तबाजी से चलता है, वो रहाई पाएगा, लेकिन कजरो, इसका मतलब है टेढ़ी रास्ते पर चलने वाला, टेढ़ी चाल चलने वाला, कि ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, इसको रयाकार कहा जाता है। और पुराने वक्तों में इसको बहरूपिया कहा जाता था कि असल इसका रूप और है, ये अपना जो जाहिर कर रहा है रूप, ये कुछ और वो अपना जाहिर कर रहा है। इसलिए हमने अपने गुनाहों को नहीं छुपाना। खुदा के हुजूर में बेशक तो छुपाते भी रहेंगे, फिर भी खुदा आप और जाहिर करेगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, आपने ये गुनाह किया। मैं परसों रात दुआ कर रहा था, मैंने खुदा को तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। और खुदा ने मुझ पर जाहिर किया, ऐ मेरे बेटे, जब तू खाकसार होता है तो मैं तुझ पर अपना राज खोल देता हूँ। जब तू खाकसार होता है, जब तू अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, तू अपने आप को खाक समझता है, तो फिर मैं तुझ पर तरस खाना शुरू करता हूँ। मैंने खुदावंद बहुत सारे खादम हैं, ये क्या मसला है? उसने कहा, खुदा के रूह ने मुझसे बात की। उसने कहा, खुदा के खादम एक बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। मैंने सुना क्या? उसने कहा, जब लोग ईमान के साथ उनको हदिया देते हैं, कहते बादशाह ये चर्च के लिए है, जब वो ये बातों से बोल देते हैं तो उस पर मोहर हो जाती है। तो जब वो उसको अपने खानदान पर, अपने आप पर इस्तेमाल करता है, तो फिर वो इस बात में वो गुनाहगार ठहरता है। मैंने खुदावंद ये बात तो बहुत सारे खादम करते हैं। उसने कहा यही उनकी नाकामी का सबब है, यही गुनाह है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा। और मैंने कहा खुदावंद फिर मुझे भी लोग हथियार देते हैं। तो मैंने ये बात सीखी, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, जब आप हथियार देते हैं तो बिल्कुल वादा किया करें, बादशाह मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। बहुत सारे लोग ये ऐसा करते हैं, बादशाह ये आपके लिए है और ये चर्च के लिए है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने उनको हिकमत दी है, खुदा ने उनको बरकत दी है। ऐसा ही करना है ताकि मैं भी भाई आपके हदिये की वजह से मैं भी गुनाहगार ना ठहरूं। जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, और जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होती है। इसलिए इस बात को भी बड़े अच्छे तरीके से जब आप हदिया देते हैं खुशी से दें और वादा करके दें, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। इसलिए आगे लिखा है कि जो रास्त वो है रहाई पाएगा, और लेकिन जो कज वो नागहान गिर पड़ेगा। जो अपनी जमीन में काश्तकारी करता है रोटी से शेर होगा, लेकिन जो बटालत का पैरों बहुत तबाह हो जाएगा। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। आप सब मेरे स्पेन हम खुदा के लिए ये एक कीमती मानते हैं। सब जोर से कहें हालेलुया, हालेलुया। हम सब जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं,
ہم اس ایریا میں خدا کے کھیت کی مانند ہیں. اس کھیت میں سے پھل نکلتا ہے اور روپیہ پیسہ ہدیہ نذرانہ نئے کی شکرداریاں یہ سب پھل ہیں جو آپ لاتے ہیں اور وہ پھل خدا قبول کرتا ہے. خدا پھل چاہتا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے. اور بہت سارے لوگ بہن کے لوگ ہیں کہتے ہیں بھائی صاحب آپ 2 سال ہو گئے 1.5 سال ہو گئے آپ ہمارے پاس نہیں آتے. میں نے کہا جو میرا جو کھیت خدا نے میرے سپرد کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اسی کے اندر محنت کروں. تو آپ زور سے کہیں ہاللویا ہاللویا. پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ کو مہینے بعد 1.5 مہینے بعد کتنے عرصے بعد آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے. آپ کے گھروں کے اندر تربیت کیا جاتا ہے. لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں خدا کی تعریف کرتے ہیں. میرے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں. اور آگے ہم نے دیانتدار رہنا. دیانتدار خدا کے حضور میں مقبول ٹھہریں گے. دیانتدار خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں. اور ہم 20 میں آیت پڑھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا. میرے پیچھے سب بولیں گے دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا. دوبارہ کہیں گے دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا. اس کا یہ مقصد ہے کہ جو دیانتدار ہوگا وہ برکتوں سے معمور ہوگا. بے شک کوئی ڈیکن ہے ایلڈر ہے پاسٹر ہے مبشر ہے لیمن ہے عام شخص ہے بچہ ہے بڑا ہے جو بھی دیانتدار ٹھہرے گا جو بھی دیانتدار ہوگا خدا اس کو برکتوں سے معمور کرے گا. خدا دیانتداروں کو سرفراز کرتا ہے. اس لیے ہم نے دیانتدار بننا ہے. ہم نے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لانا ہے. ہم نے خدا کی باتوں پر عمل کرنا ہے. ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے. ہم نے کلام کی تکفیر نہیں کرنی. ہم نے اپنے خدا کو خوش کرنا ہے. اس لیے کہ دیانتدار آدمی جو ہے وہ برکتوں سے معمور ہوگا. ہم نے برکتوں سے معمور ہونا ہے. سب زور سے کہیں ہاللویا زور سے کہیں ہاللویا ہاللویا. ہم نے برکتوں سے معمور ہونا ہے. اور برکتوں سے معمور ہونے کا راز خدا نے بنی اسرائیل کو بھی بتایا تھا. اور آج مسئلہ کچھ اور ہے. سب کا نہیں ہے تھوڑے سے لوگوں کا ہے. زیادہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے ان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے کہ وہ کام کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے. آج کے دن وہ خدا کی عبادت کو ترجیح دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج کے دن بھی کام کو ترجیح دیتے ہیں شاید ہمارے گھر کے اندر برکت ہو. کیونکہ خدا نے کہا کہ تم میری عبادت کرنا میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تمہارے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دوں گا. عبادت کرنے کے میرے جو بڑے بیٹے ہیں ہمارے گھروں کے اندر برکت ہوتی ہے. اور یہاں پر لکھا ہے دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا. اگر آج سنڈے کے دن جان بوجھ کر آپ دائیں ہو جاتے ہیں تو آپ دیانتدار نہیں ہیں. اور جو سنڈے کے دن عبادت کرتے ہیں وہ سب دیانتدار ہیں. سب زور سے کہیں ہاللویا ہاللویا. اس لیے ہم نے دیانتدار بننا ہے. دیانتدار بننا ہے تاکہ ہمارا خدا ہم سے یہ کہے اے دیانتدار نوکر میں تجھ سے خوش ہوں. اے میرے دیانتدار بیٹے میں خوش ہوں. میں تجھ سے خوش ہوں. یسوع کے لیے آسمان سے یہ آواز آئی ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے بیٹوں کی تربیت کرنی ہے. یہ بیٹا ایک ایڈ پڑھیں گے 29واں باب انسان 29واں باب اس کی 70ویں ہے. کیا لکھا ہے اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا. اپنے بیٹے کی تربیت کر اپنے بیٹے کی تربیت کر. آج اگر چھوٹے بچوں کی ہم تربیت کریں گے جو یہ سامنے بیٹھے ہیں اگر ان کی تربیت کریں گے تو کلام کے مطابق یہ ہمیں آرام دیں گے. اگر اور لکھا ہے تیری جان کو شادمان کرے گا. اگر ہمارے بیٹے جو بڑے ہیں اگر آج ہمیں وہ آرام نہیں دے رہے سکون نہیں دے رہے تو اس میں ماں باپ کی خطا ہے گناہ ہے غلطی ہے کہ انہوں نے ان کی تربیت اس طریقے سے نہیں کی. اور میں اکثر سکھا رہا تھا
कि जो टाइम हमें अपने बच्चों को देना चाहिए हम दाएं बाएं टाइम को गुजार देते हैं, वो टाइम दाएं बाएं गुजार देते हैं, बच्चों को वो टाइम नहीं देते, इसमें वो ध्यानदारी नहीं करते। जो बच्चों का टाइम है, जिनका हक है उनको नहीं देते, वो हक किसी और को देते हैं जो हम बाध्यान ठहरते हैं। तो बाध्यान क्या होंगे तो फिर हम बंधु से ममूर नहीं होंगे। इसलिए हमने अपने बेटों की अपनी बेटियों की तरबियत करनी है ताकि वो हमें आराम दे। ये कलाम का फैसला है, अपने बेटे की तरबियत कर, वो तुझे आराम देगा और तेरी जान शादमान होगी, तेरी जान शादमान होगी। अगर किसी माँ बाप के बच्चे जो हैं या वो नशाबाजी करते हैं, चरस पीते हैं, पाउडर पीते हैं और भी वो नशाबाजी करते हैं, पूरी रात पर चलते हैं, तो माँ बाप जो है वो बड़ा टूटते हैं, रोते हैं और कहते हैं बच्चे सुनते नहीं। आज जब छोटे हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, आज सुनने का टाइम है, आज उनको सुनाएं। जब आप सुनाने की कोशिश करेंगे उस वक्त वो नहीं सुनेंगे। आज इसलिए अपने गुनाहों का, अपनी खताओं का हमें इकरार करना है। जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कामयाब ना होगा, जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है वो मुसीबत में पड़ेगा। हमने अपने दिलों को सख्त नहीं करना, बल्कि हमने अपने दिल को हलीम बनाना है, खुदा के कलाम के मुताबिक हमने चलना है। इसलिए कि हमारे सुपुर्द खुदा ने ये खिदमत दी है, ये औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, इसलिए हमने इसकी अच्छी परवरिश करनी है। हमने अपनी औलाद पर तवज्जो करनी है और अपने गुनाहों का इकरार करना है कि हमने गुनाह किया, हमने गुनाह किया। अगर हम इकरार करेंगे तो फिर हमारा खुदा जो है वो हमें बरकत देगा। हाँ जी, एक ऐड देखेंगे, यूहन्ना रसूल का पहला आखिर और उसका पहला बाब और उसकी आयत 8 में और लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह है तो अपने आप को फेर देते हैं और हम में सही नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पार करने में सच्चा और आदल है। अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं, क्योंकि हम जब ऊपर बढ़ जाते हैं 5वीं आयत को पढ़ेंगे, हमने क्या है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहेंगे हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो अब झूठे हैं और हक पर नहीं अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चले इस तरह कि वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है, हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, एक दो गुनाह से नहीं बल्कि तमाम गुनाहों से हमें पाक करता है। इसलिए हमने इकरार करना है। जो इकरार करता है, तो इकरार मुंह से किया जाता है, ईमान लाना दिल से होता है। और इसलिए हमने ईमान लाना है, इकरार करना है ताकि हमारी गुनाहें हमारे गुनाह बख्शे जाएं। खुदा आपको इस्लाम की वजह से बड़ी बरकत दे। आमीन। सब लोग से कहेंगे आमीन। हालेलुया। सब अपने को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। चंद लम्हों के लिए इकरार करना शुरू करें, खुदा मैंने तुझे नाराज किया, मैंने तेरे कलाम पर नहीं चलता, मैंने तेरे कलाम को नहीं सुना था। खुदा आज मैं इकरार करता हूँ कि मैं तेरे कलाम को सुनूंगा, मैं तुझसे दुआ भी करूंगा, मैं तेरी बातों पर अमल करूंगा। मुझे तौफीक अता कर।